Very good evening, everyone. Is my voice audible? Am I? Okay, thank you. I hope you all are doing well. In the best of your health, please take care of yourself. We are meeting after a long time, after a long break. So today we'll start another topic of botany, that is mineral nutrition. Uh, in this, what mineral nutrition will be studying will be related exclusively to plants. Okay, not of human mineral nutrition. This is of plant mineral nutrition. So, okay. So today we'll see basic what exactly is mineral nutrition and what are the requirements of these minerals for the plants, or every element of that mineral has a certain criteria which makes it as a mineral component for the plant physiology. Then the division or classification of the mineral nutrition. Then we'll see the exact mechanism how it is absorbed in the plant, and we'll see one cycle today, that is nitrogen cycle. Okay. So starting with the introductory part, basically when we talk about mineral nutrition or mineral elements, these are basically inorganic compounds. Okay, inorganic compounds या फिर आप inorganic nutrients भी कह सकते हैं इन्हें, which are found in soil and water sources. तो basically ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को जब हम कन्वर्ट करते हैं in a useful compound for us, so that basically is called as mineral nutrition, and all these mineral nutritions are important for the entire growth of the plant, और जब हम animals की बात करते हैं तो also it helps in developmental growth of plant and animals both. So you have to remember that mineral nutrition is the inorganic element or compound or nutrition which is found exclusively in soil and water, and it is important for the growth of plants. Okay, fine. And जब हम मिनरल न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो मिनरल न्यूट्रिएंट इज ए ब्रांच जिसमें हम कहाँ से मिनरल न्यूट्रिएंट्स आते हैं, मतलब उनका सोर्स वो कहाँ से आते हैं, वो किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, ऑल दैट वी सी. ओके, सो टुडे वी स्टडी टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन बेसिकली. ये जो रिसर्च है या फिर ये जो टॉपिक है ये काफ़ी सालों से चल रहा है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट. सो बेसिकली देयर वाज ए वेरी ओल्ड जर्मन बॉटनिस्ट. इन 1860 उन्होंने एक रिसर्च किया था. हिज नेम वाज जूलियस वॉन सैट. तो वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और उन्होंने ऐसा स्टेट किया था कि हम एक प्लांट ग्रो कर सकते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सॉइल. तो उन्होंने वो प्रोसीजर एक्चुअली डेमॉन्स्ट्रेट किया जहाँ पर उन्होंने कुछ सोल्यूशंस मिक्स किए, फिर उसमें सीड ग्रो किया, देन वो बड़ा सा प्लांट हुआ, ऑल दैट. तो ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है कि वी कैन ग्रो प्लांट्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सॉइल एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स. Okay, those plants are called as hydroponics, which are grown without the presence of soil. तो उसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन. ओके, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, दीज ऑल आर हाइड्रोपोनिक्स. दे आर नॉट ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ सॉइल, दे आर ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन. सो व्हाट आर दीज न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, या फिर जो हाइड्रोपोनिक्स है वो exactly पूरा concept क्या है. So in this what we do is we take some amount of water, we take some amount of mineral solution. अब ये मिनरल सोल्यूशन कैसे डिफाइन किया जाता है कि हमें यही मिनरल सोल्यूशन चाहिए. सो फॉर दैट वी डू ए लाइफ साइकिल स्टडी ऑफ द प्लांट. ओके, विल सी हर एक मिनरल का क्या रोल होता है प्लांट्स में. ओके, सपोज अगर हम जिंक की बात करते हैं, ओके, सो हाउ विल वी नो कि जिंक ही चाहिए प्लांट को. तो जिंक का एक स्पेसिफिक फीचर रहता है या फिर स्पेसिफिक फंक्शन होता है प्लांट के लिए. ओके, मतलब सपोज जिंक इज रिस्पॉन्सिबल कि प्लांट का जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से हो. तो अगर हम जिंक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा कि उसके लीफ अच्छे नहीं होंगे. सो दैट इज हाउ this process came into picture. Fine. So growing plants without soil is called as hydroponics,
इट इज ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल सोल्यूशन. ओके, तो इसका जो रूट रहता है दैट इज बेसिकली soaked inside the mineral solution, and that's how the plant gets nutrition and the entire process takes place. Fine. Now another type of plant growth we can see, that is called as aeroponics, जिसमें plants are grown without a growing medium. Okay, fine. Then next we have the sand culture, जहाँ पे sand is basically used, उसमें हम nutrients add करते हैं, and that's how the plants grow. But for today's topic या फिर for this chapter we need to remember hydroponics. Okay. Yeah. So this is the procedure of hydroponics. What exactly happens in hydroponics? You must be seeing here. ये हमारा plant है. Okay, we have immersed it in a nutrient solution. Okay. Along with that, we have another entry of funnel जहाँ से we will give water supply, we will give nutrient supply. अगर हमें कोई solution निकालना है, कोई solution add करना है, so all that is done through this area, this funnel. Okay. एंड दिस इज दी एरेटिंग ट्यूब जहाँ से गैसियस एयर या फिर जो भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज exchanged here. Okay, fine. Now when we grow this plant here, we put it in these tube like structures. Okay, so यहाँ पे एक ड्रेनिंग पाइप रहता है जहाँ से हमें जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन प्रोवाइड करना है या फिर जो भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रोवाइड करना है, दैट एक्चुअली drains from this pipe and then it is again put here on this what you call on this tank. Okay, फिर यही solution या water फिर से ये reuse होता है, again it goes up here and then it comes down here. Yeah, so then it comes down here. So ये जो भी solution है या फिर water है वो reuse होता है. It goes up from this pipe. Okay, it drains the roots of this plant और फिर से वो वापस उसी टैंक में आता है. तो ये एक साइक्लिक प्रोसीजर है जो होता रहता है. ओके, सॉरी, ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपको याद रखना है, मतलब ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स है. सो यू डोंट हैव टू डू एनी चेंज और एनी वेरिएशन इन दिस. You have to just learn it the way they are. So what exactly is criteria for essentiality? मतलब अगर यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, वी हैव H2O. सपोज वी हैव कंसिडर एग्जाम्पल H2O है. ओके, तो what defines हाइड्रोजन एटम या फिर what defines ऑक्सीजन एटम टू बी एसेंशियल फॉर द प्लांट? तो वो प्लांट को एसेंशियल होने के लिए, प्लांट को ज़रूरी होने के लिए इट शुड हैव सम क्राइटेरिया. उसके कुछ क्या बोलते हैं, इट शुड फुलफिल सम क्राइटेरिया. अगर आप इफ यू अप्लाई फॉर अ जॉब एनीवेयर, ओके, इवन नाउ इफ यू वांट टू बी नाउ यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस, तो आपके कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होते हैं. तो आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? दैट यू शुड बी 12th पास. ओके, यू शुड बी 12th पास और आपके 50% एवरेज होना चाहिए आपके एग्जाम का. ओके, तो दिस इज योर क्राइटेरिया फॉर गिविंग ए मेडिकल एंट्रेंस या फिर एंट्रिंग ए मेडिकल कॉलेज. सिमिलरली all these elements, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं इनसाइड आवर सॉइल एंड नेचर, बट उनको प्लांट के लिए जरूरी होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? सो दो क्राइटेरियाज आर, फर्स्ट वन इज इट शुड बी नेसेसरी इन सपोर्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. अगर वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सपोर्ट नहीं करता है तो वी डोंट नीड दैट. ओके, so this is our first criteria, that it should be helpful for us in supporting the entire growth and development of the plant. Okay, fine. Next one is the deficiency which is present. Suppose कोई एक element है, okay, suppose मैं जिंक ले रही हूँ. अगर जिंक की deficiency है तो वो मैं
मैंगनीज देकर कंप्लीट नहीं कर सकती। ओके, क्यों? क्योंकि जिंक का जो काम है वो जिंक ही कर सकता है, मैंगनीज कैन नॉट डू दैट वर्क। या सो जो काम जिंक का है वो जिंक ही करेगा, मैंगनीज कैन नॉट डू जिंक्स वर्क। ओके, जिंक का काम क्या है? टू सप्लाई दी लीव्स। ओके, सो मैंगनीज कैन नॉट सप्लाई दी लीव। ओके, तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट है भी तो भी वी डोंट नीड दैट। Okay, so the second point is that the deficiency of one element cannot be met by the deficiency of another element. Okay, that is our second criteria. Third criteria will be it is should be directly the part of metabolism of plant। इसका मतलब क्या है? whichever element या फिर whichever nutrient हम consider करते हैं, that should take part in every process of plant। what is the every process? We have photosynthesis, we have other chlorophyll mechanism, we have many other mechanisms inside the plant, absorption of water है, ये सारे process में that element should be important। if it is not playing any role in any of these processes then we don't need it। okay, तो why do we need it? basically इनका काम क्या रहता है? इनका काम ये रहता है कि they actually balance the function। बैलेंस दी फंक्शन में क्या होता है? सम सॉल्ट या फिर मिनरल्स जो भी होते हैं, दे आर हैविंग दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट। ओके, दे हैव सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट। तो उस हार्मफुल इफेक्ट को कम करने का काम हमारे कुछ एलिमेंट्स करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स करते हैं। तो वो क्या करते हैं? दे आर बैलेंसिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स विच आर हार्मफुल। सपोज बी हार्मफुल है, ओके, बी का टॉक्सिक इफेक्ट होता है प्लांट पे, सो ए इज गोइंग टू बी balancing the toxicity of B। So that is what is balancing function। Okay, next is it is important for maintaining the osmotic pressure। you know what is osmotic pressure? Then it influences the pH level of our cells। ओके, एवरी सेल, हर एक सेल का एक अपना पीएच लेवल रहता है, तो उस पीएच लेवल को ये एलिमेंट जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो दैट इज व्हाट इज इट्स फंक्शन। नेक्स्ट इज जो एंटायर प्लांट बॉडी बनती है, प्लांट का स्ट्रक्चर बनता है, दैट कंस्ट्रक्शन इज डन बाय दीज न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। ओके, सो दैट इज हाउ वाइटल, इतना वाइटल हर एक न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है कि दे एक्चुअली डू दी एंटायर प्लांट मॉड्यूलेशन। प्लांट का जितना भी स्ट्रक्चर बनता है, that all is constructed by these mineral elements। okay, next is it helps in catalyzing the processes of plant। what is catalyzing processes? catalyzing processes means it acts like a catalyst। suppose zinc है, okay, तो zinc is going to act as a catalyst in photosynthesis। okay, photosynthesis का जितना भी प्रोसीजर है उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए what is the function of a catalyst? catalyst basically helps the entire process to go ahead। so similarly ये जितने भी elements है, they all act as a catalyst for the plant procedure। so these are the basic functions of plant। okay, now based on these functions in nutrients को हम दो parts में divide करते हैं। first is macronutrient, second is micronutrient। what are macronutrients? macronutrients are those nutrients जो plant को ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा अमाउंट में जो nutrients लगते हैं, those are called as macronutrients। okay, और जो nutrients एकदम small quantity में लगते हैं, they are called as micronutrients। okay, so micronutrients basically क्या होते हैं? micronutrients आपको याद रखने हैं कि micronutrients हमेशा 9 होते हैं। okay, whereas micronutrients will be 8। मैक्रो का स्ट्रेंथ हमेशा 9 रहता है, माइक्रो इज 8। okay, we'll see how to remember that in next slides। yeah, okay, so starting with the macro elements। ये टेबल ये एक्चुअली मैंने आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करके बनाया है, so you guys can note it down later।
ओके अगर आप अभी नोट डाउन नहीं कर पा रहे तो भी ठीक है, आपको बाद में हमारे वेबसाइट पे ये क्लास का लेक्चर मिल ही जाएगा, तो यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो इफ यू रिमेंबर दिस टेबल देन योर एंटायर चैप्टर इज डन फॉर द एग्जाम. ओके. यस. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रो एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन, जो हमको एबंडेंस में लगता है प्लांट के लिए, तो वो है नाइट्रोजन. और ये हमें किस फॉर्म में मिलता है? ये हमें नाइट्राइट्स में मिलता है, नाइट्रेट्स में मिलता है. ओके फाइन. सो इट इज, जैसे मैंने बोला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सॉइल से जब नाइट्रोजन लिया जाता है प्लांट से, वो जाके बाद में प्लांट का जो composite formation बनता है, that is proteins, nucleic acids, amino acids, purines, ये सब जो बनता है उसमें नाइट्रोजन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके फाइन. अगर नाइट्रोजन की कमी है तो व्हाट हैपेंस इज क्लोरोसिस. व्हाट इज क्लोरोसिस? क्लोरोसिस इज येलोइंग ऑफ द लीव्स. ओके. बेसिकली क्लोरोसिस में जो क्लोरोफिल का जो अमाउंट है या फिर क्लोरोफिल का जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जाता है. क्लोरोफिल स्टार्ट्स डिग्रेडिंग. क्लोरोफिल का काम क्या है? टू गिव द ग्रीनिश अपीयरेंस टू द प्लांट. ओके. सो इफ क्लोरोफिल स्टार्ट्स डिग्रेडिंग तो उसका ग्रीन कलर जाके येलो कलर आने लगता है. दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोसिस. So that is why nitrogen is important. Otherwise, what we are going to get in the plant is chlorosis. This is MCQ for you all. Okay, fine. मैंने ये आपके लिए सिंप्लीफाइड इसीलिए किया है ताकि आप एग्जाम में भी याद रख सके बराबर. ओके. नेक्स्ट वी हैव सल्फर, which is important part in our protein mechanism of the plant. Okay. अगेन अगर सल्फर कम रहेगा तो जो यंग लीव्स होते हैं, बडिंग लीव्स जिसे हम कहते हैं, बडिंग लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज यंग लीव्स. जो स्मॉल लीव्स होते हैं ना, दोज आर द यंग लीव्स. दे विल हैव क्लोरोसिस. ओके. अर्ली क्लोरोसिस जिसे कहा जाता है. आइडियली ओल्ड लीव्स जो होते हैं दे टेंड टू गो इनटू क्लोरोसिस, बट if sulfur is less, then even the young leaves undergo chlorosis. Next is anthocyanin pigmentation. Green leaf is there. Okay. A green leaf होती है and suddenly what we see is there is lot of dots like this. Okay. Lots of dots. White होते हैं, yellow होते हैं. So that is anthocyanin pigmentation. Okay. You must have seen कभी पालक अगर आप लोगों ने देखा होगा, आई डोंट नो वेदर यू गाइज मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इट. इफ यू see palak at times, if that palak is not fresh या फिर it has undergone some physiological change, so even you can see there are certain dots, white yellowish dots on the palak leaf. मैं पालक का एग्जाम इसलिए दे रही हूँ बिकॉज इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज इट इज़ बिग लीफ compared to other vegetables. It is a big leaf, so you can observe it very nicely. Fine. Next is phosphorus, which is very important in our enzyme activation process. हमारे प्लांट के जितने भी एंजाइम्स रहते हैं उन सबको एक्टिवेट करने का काम हमारा फॉस्फोरस करता है. ओके. प्लांट की जितने भी एंजाइम्स है, जितने भी हार्मोन्स है, ऑक्सिन्स है, गिबरेलिन्स है, ये सबको एक्टिवेट करने का काम हमारा फॉस्फोरस करता है. ओके. इफ दिस इज गोइंग लो, इसकी अमाउंट लो होती है या फिर इसका लेवल डिग्रेड होता है, तो व्हाट इज गोइंग टू अफेक्टेड? मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड. ओके. अलॉन्ग विद दैट, अगर मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, ओके, मतलब प्लांट का फूड बनाने का प्रोसेस ही इफेक्ट होता है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? उसका शेप और साइज भी चेंज होने लगता है, एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं. ओके. जैसे हमारे बॉडी में होता है, इफ वी डोंट ईट फूड प्रॉपर्ली then what happens? हमारी ग्रोथ बराबर नहीं होती है. सिमिलरली इन द प्लांट्स ऑल्सो, if their metabolism is affected, then their shape and size is affected. Okay, fine. Chloroplast form the very important part, so metabolism is directly going to affect the chloroplast. Okay. Next we have calcium. Calcium is very important in our spindle division. हमारा जो रूट टिप होता है,
ओके, यहाँ पे हमारा रूट टिप आता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, उसके बाद व्हाट वी हैव इज ए मेरिस्टेमेटिक सेल या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमें कहते हैं। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन ऑफ द सेल्स। ओके, तो अगर हर एक सेल डिवाइड होता है प्रॉपरली, देन ओनली we'll see a very good plant structure या फिर very good leaf structure. But if calcium is not there, then ये जो मेरिस्टेमेटिक डिवीजन यहाँ होता है वो पूरा इफेक्ट होता है। दैट इज वाई द माइटोटिक लेवल सेल्स एज वेल एज जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन इज व्हाट, क्रोमैटिन इज द कलरिंग स्ट्रक्चर इनसाइड द लीव्स। तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, बेसिकली क्रोमैटिन किस में रहता है, क्रोमैटिन इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द लीव्स, ओके, सेल्स ऑफ द प्लांट। तो अगर सेल ऑर्गेनाइजेशन ही बराबर नहीं हो रहा है तो क्रोमैटिन का भी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होता है। ओके, अब जब अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हो रहा है तो क्या इफेक्ट होता है, फ्लोरोसिस। ओके, ये हमारा लीफ है। ओके, फाइन, व्हाट वी सी इज, ये हमारा मार्जिन ऑफ लीफ है, ये साइड वाला, सॉरी, ये हमारा मार्जिन है। ठीक है, ये साइड से आप जो देख रहे हैं ये मार्जिन है। ओके, दिस इज आर सेंट्रल वेन एंड फिर यहाँ से हमारे दूसरे वेन्स आते हैं, एडजेसेंट वेन्स आते हैं। सो व्हाट इज मार्जिन क्लोरोसिस, साइड से जो येलोइंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द लीफ, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन क्लोरोसिस। Okay, fine. Next, what we have is potassium, okay, which is important for the opening and closing of stomata. Okay, हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें we had a stomatal opening like this. Inside we had last lecture में inside we had the chloroplast. Okay, then we had the outside layer. So इसमें ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, दैट इज डन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम। ओके, अगर पोटेशियम नहीं होता है देन व्हाट वी सी इज, वी सी वेरी वीक स्टेम। ओके, ये जो प्लांट का स्टेम होता है वो बहुत वीक बनता है। व्हाई, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन इनसाइड द लीफ। ओके, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है या फिर स्टोमेटा है, उसमें ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेंट आउट। So too much of oxygen also affects the growth of stalks and they end up becoming very weak. Okay, next we have magnesium, which is another important component for our photosynthesis process. Okay, अगर magnesium कम होता है, what we see is chlorosis, again chlorosis of leaf, and then we see they turn upward. Okay, suppose ये आपका पूरा leaf है, this is your leaf, entire leaf. Okay, so if magnesium is less, what is going to happen is उसके जो margins है, ये उसके margins है, तो margins will turn upward like this. Okay, so it will be like the leaf will close, ऐसा ऐसा structure बनता है वो. So basically जो margin है, they tend to come closer, they tend to go upward. So that happens when magnesium is less. Next we have the micro elements. Micro elements basically are those elements जो plant को बहुत कम quantity में लगते हैं. So what are they? The first one is iron, okay, which is important for the entire electron transport process जो हमने last class में देखा था. Okay, which happens in photosynthesis part. We had seen there is PS1, PS2, and how the electron exchange takes place. So all that cycle takes place in presence of iron. Okay, if it is not there, उसकी quantity कम होती है, अगर required quantity available नहीं होती है, then what we see is again spots on the leaves and stem. Okay, next we have boron. Boron is important for the carbohydrate metabolism of plant. Okay, if it is not there, okay, carbohydrate metabolism is what, carbohydrates are basically energy sources. If carbohydrate is less, then what we see is
the plant does not grow properly. Okay, it will grow heavy. Heavy matlab it will not grow in a organized manner. Suppose basically what is organized manner of a plant, that it should have leaf, it should have a good stem, it should bear flowers, it should bear fruit, it should bear vegetables. So all these are the organizational component of plant. So when carbohydrate metabolism is affected, what happens is there is disorganization of the meristematic tissues. ओके, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, जो प्राइमरी टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड होते हैं और फिर और प्लांट के पार्ट्स बनते हैं, वही बराबर ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, तो प्लांट का पार्ट ही नहीं बनता है ठीक से. ओके, उसके लीव्स ही नहीं बनते बराबर. सो व्हाट वी सी इज देयर इज डिफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन देयर विल बी डिस्कलरेशन. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वी हैव मैंगनीज which is important for the release of oxygen, okay, and photooxidation of hydrogen. Photooxidation, if you people must be remembering, हमने last class में देखा था. It is what it is. It is जब light energy आती है on a leaf, okay, तो वो excess में plant या फिर leaf को destroy ना करे. Okay, अगर वो destroy करता है तो that is called as photooxidation. तो वो डिस्ट्रॉय ना करे, इसीलिए दे हैव सर्टेन मैकेनिज्म. ओके, वो मैकेनिज्म किससे किससे कंट्रोल किया जाता है? वो मैकेनिज्म किया जाता है मैंगनीज से कंट्रोल. ओके, अगर मैंगनीज नहीं होगा तो प्लांट का जो भी वाटर कंपोनेंट है, वाटर कंटेंट है, वो पूरा डिस्ट्रॉय होता है बिकॉज ऑफ द लाइट एनर्जी. क्योंकि लाइट एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, सनलाइट इतनी स्ट्रांग होती है कि इट कैन easily take away the entire moisture from the leaf. Okay, so what we see is उसका पूरा moisture चले जाने के बाद chloroplast या फिर chlorophylls cannot function properly. Chlorophylls तो they actually get dead. Okay, they get degraded. So that is why what we see is chlorosis, that is yellowish color. Okay, और हमारा पूरा वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर चला जाता है. तो मॉइस्चर जाने के बाद व्हाट हैपेंस इज नेक्रोसिस. ओके, इन द इंटरवेंस ऑफ यू ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग इंटरवेंस दिस इंटरवेंस, ये इंटरवेंस होते हैं. ओके, दिस इज इंटरवेंस. सो दे अंडरगो नेक्रोसिस. नेक्स्ट वी हैव copper, which is again important in our electron transport system. If that is not there, then we have fluorosis and distortion. Okay, another element is the zinc, which is important in synthesis of oxygen. ऑक्सीजन को बनाने का काम. ओके, ऑक्सीजन को बनाने का काम या फिर ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम इज डन बाय जिंक. So what if it is not there? Oxygen का function क्या है? Oxygen का function is to give a good quality of seed, okay, and it also helps in length. जो lengthenal growth होता है plant का, upward growth होता है, oxygen facilitates that growth also. So if zinc is not there, then what is going to happen is suppression of seed formation and shortening of internodes. Okay. Oxygen increases the length of plant, but if oxygen is only not there, then we'll get short plant. Okay, next is molybdenum. Molybdenum, इस पे पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि कई बार what students do is they tend to ignore this element. Since it is not so vital, they tend to ignore this. Okay, but then it is a very important component and very important from your exam point of view also. So we'll just understand what exactly happens in this. जो नाइट्रोजन साइकिल होता है, ओके, नाइट्रोजन साइकिल में कभी कभी एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि देयर इज लॉट ऑफ नाइट्रेट एक्यूमुलेशन. ओके, so to reduce that nitrate accumulation, what molybdenum does it, molybdenum उसको न्यूट्रलाइज करता है. ओके, अगर molybdenum की क्वांटिटी कम होती है तो what happens is हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल है वो पूरा कॉम्प्रोमाइज होता है. ओके, सो हमें जो नाइट्रोजन चाहिए प्लांट ग्रोथ के लिए वो फिक्स ही नहीं हो पाता है. सो दैट इज वाई द प्लांट कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली.
if you all must be knowing, nitrogen plays a very important role for plants. But if it is not there, okay, if it is not there, then plant cannot grow properly. Fine. Next what we have is क्लोरीन. अगेन मोलिब्डेनम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो नाइट्रोजन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए मोलिब्डेनम इज इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस. देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज क्लोरीन. क्लोरीन इज another important component for transport of electrons, okay, from water to chlorophyll. Okay, so if water is not reaching leaves, leaves क्या हो जाएंगे, leaf will वो सूख जाएंगे, they'll become dry. So that is what is wilted leaves. Next is the last one which we are having is nickel, which is important for the hydrolysis of urea to carbon dioxide and NH4. Okay, it acts as a very important component for this hydrolysis process. जो यूरिया मिलता है हमें सॉइल से, नाइट्रोजन से, उस सबको हाइड्रोलाइज करने, हाइड्रोलाइज मतलब टू न्यूट्रलाइज इट, हमें निकल की ज़रूरत पड़ती है. अगर एक्सेस ऑफ यूरिया होता है तो द प्लांट अंडरगोज नेक्रोटिक कंडीशन. ओके, नेक्रोसिस इज डिग्रेडेशन. फाइन. अगर यूरिया एक्यूमुलेट ज़्यादा होने लगता है तो व्हाट वी सी इज there is necrosis around the leaves, and then slowly it spreads to the entire plant. So this is what is the micro elements and macro elements. तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था that you have to remember that there are, I'll show here. Okay, so macro मैंने बोला था, macro is 9. So what exactly is macro 9? Macro 9 is there is okay, so there is calcium, okay, there is hydrogen component, there is oxygen component, there is nitrogen, there is sulfur. Okay, ये हो गया. उसके बाद पोटेशियम है, पोटेशियम, potassium is Pk. Okay, then next what we have is manganese and another calcium. Okay, so sorry, तो आपको याद रखना है ये बन जाता है चॉन्स. ओके, अगर आप ये स्पेलिंग देखेंगे तो ये बन जाता है चॉन्स. ओके, सो रिमेंबर चॉन्स एंड दिस इज पीके. चॉन्स, पीके, MgCa. ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस. आप इसको डिवाइड कीजिए एंड यू विल रिमेंबर इट वेरी इजीली. ओके, दिस इज चॉन्स. Okay, this is Pk, that is potassium. Then we have magnesium and calcium. This is the macro elements. Next we have the micro elements जो है ant. So okay, I'm right here. तो हमारा फर्स्ट आपको याद रखना है कि निकल है. Next we have boron, then we have chlorine, then we have we have molybdenum, we have manganese, then we have zinc, then we have copper, and we have iron. Okay, so you remember it in this way. Okay, फाइन. तो आपको इस वे में ये याद रखना है. या नाउ कमिंग टू टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. व्हाट इज टॉक्सिसिटी एग्जैक्टली? जब उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे हमारा आयरन है, ठीक है.
तो आयन का काम क्या है कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ईटीएस, बट इफ उसका जो सपोज आयन की क्वांटिटी जो होती है वो प्लांट में होती है 40%, ओके, तो 40% में अगर वी हैव दिस थिंग, इफ वी हैव आयन, तो प्लांट का जो ईटीएस सिस्टम है वो बराबर चलता है। बट अगर वो नहीं है तो व्हाट हैपेंस इज जो भी जो भी आयन का फंक्शन है वो बराबर नहीं हो पाता है, ओके। तो वो अगर गिरने लगता है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन फॉल्स डाउन, देन व्हाट वी सी ईटीएस का काम ही नहीं हो रहा है। ईटीएस का काम नहीं हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो प्लांट इज नॉट गेटिंग इट्स फूड, सो दैट इज कॉल्ड एज टॉक्सिसिटी, ओके फाइन, दैट इज कॉल्ड एज टॉक्सिसिटी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन? जब हम कोई एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट सप्लाई कर रहे हैं, ओके, अगर वो सप्लाई लिमिटेड हो जाता है, ओके, इतना लिमिटेड हो जाता है कि वो काम ही नहीं कर पाता, fine, so that is called as critical concentration, okay। If the concentration of that element becomes useless, it is not useful for us। अगर मुझे इस प्लांट को ग्रो करने के लिए मुझे चाहिए 12% ऑफ मैंगनीज, ओके, एंड आई नीड 5% ऑफ मोलिब्डेनम, ओके, अगर इसकी क्वांटिटी बन जाती है अराउंड 1.5% प्लांट में और इसकी मोलिब्डेनम की बन जाती है अराउंड 0.7, तो ये कॉन्सेंट्रेशन मेरे कुछ काम के है ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू फुलफिल द नीड ऑफ माय प्लांट, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैंगनीज एंड मोलिब्डेनम, ओके, अंडरस्टूड। जब एक स्पेसिफिक एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन इतना गिर जाता है कि इट इज ऑफ नो यूज टू द प्लांट, that is called as critical concentration, okay fine। So that these are the two things which you have to remember in toxicity of micronutrients। Next we have mechanism of absorption of elements। ये एलिमेंट एब्जॉर्ब कैसे होता है, तो आपको याद रखना है कि इसमें दो टर्म्स आते हैं। फर्स्ट तो इनफ्लक्स होता है। इनफ्लक्स मीन्स व्हाट? इनफ्लक्स इज movement of water or the solute inside the cell, okay, and efflux is this, efflux is movement of water and solute outside the cell, okay। एक सेल है, सेल के अंदर जाने वाले प्रोसेस को हम इनफ्लक्स कहते हैं, बाहर आने वाले प्रोसेस को हम इफ्लक्स कहते हैं, ओके फाइन। So what you see here is how the elements are getting absorbed through the water, okay। तो ये एक ग्रॉस स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक रूट हेयर से पानी अंदर जा रहा है टुवर्ड्स दी कॉर्टेक्स एंड दी एपिकल सेल्स। तो इसको अगर हम मैग्नीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनता है, फाइन। सो व्हाट यू सी हियर इज दी सेल्स, इनिशियल सेल्स, जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ओके। तो ये सेल्स में से इसके बाद जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो हमारे जाइलम एंड फ्लोएम है। अगर आपको याद होगा हमने एक बड़ा सर्कुलर डायग्राम देखा था, ठीक है, ये बाहर का लेयर था, अंदर कॉर्टेक्स था, ओके, देन व्हाट वी हैड वाज दी जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। ऐसे स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स थे जाइलम एंड फ्लोएम। सो अभी हमने पानी तो एब्जॉर्ब किया है, ओके, सो पानी अंदर जा रहा है टुवर्ड्स दी प्लाज्मोडेस्माटा। सो जो सेल्स यहाँ पर आते हैं इसलिए होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ओके, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं। फिर यहाँ से पानी जाता है जाइलम एंड फ्लोएम की तरफ। सो वही डायग्राम ये यहाँ पर भी है। तो ये जाता है तीन तरह से। तीन तरह से मतलब कैसे जाता है? पहले तो जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब पूरा मेम्ब्रेन के अंदर से निकल के from the other side it goes out। so what you see here is ये एक सेल मेम्ब्रेन है, तो इसको पूरा ट्रेस पास करके it is traversing the entire membrane and reaching the xylem, so that is called as transmembrane। what do you mean by trans मतलब going inside and coming out, okay, bisecting।
सो दैट इज ट्रांसमेम्ब्रेन रूट। नेक्स्ट रूट आता है वाटर ट्रांसफर का या फिर एलिमेंट ट्रांसफर का, दैट इज एपोप्लास्टिक रूट। एपोप्लास्टिक रूट इज दी जो बिटवीन पाथवे होता है, हर एक सेल के बिटवीन पाथवे को हम एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं। ओके, एपोप्लास्टिक pathway. What is apoplastic pathway? Apoplastic pathway is the pathway present between each cell. Each cell wall भी आप कह सकते हैं। तो ये जो है ये cell wall है। So water is going to pass from this cell wall, reach this cell wall. तो ऐसे it goes to xylem. The last root is the symplastic root. Okay, symplastic root मतलब it does not go between the spaces. वो सेल के ऊपर से जाता है। ओके, ये सेल्स हैं हमारे। ओके, तो ये जो बिटवीन स्पेस है, यहाँ से जो पानी जाता है दैट इज कॉल्ड एज एपोप्लास्टिक पाथवे। ओके, बट देयर इज अनदर वाटर विच गोज फ्रॉम अबाउ द सेल्स। जो ट्रांस मेम्ब्रेन आप देख रहे थे, सपोज ये सेल है, ट्रांस मेम्ब्रेन क्या करता है, इट गोज बिटवीन द सेल। ओके, बिटवीन द सेल एंड इट गोज टू अनदर सेल। फाइन। एपोप्लास्टिक क्या करता है, एपोप्लास्टिक गोज फ्रॉम दी सेल वॉल, सेल वॉल के बीच में से पास होता है, देन इट गोज टू अनदर सेल वॉल। बट व्हाट सिम्प्लास्टिक डज इज, सिम्प्लास्टिक विल गो फ्रॉम above the cell, okay, then it will pass on to another cell surface, so that is symplastic route. Okay, fine. So you need to remember mechanism of absorption में कि तीन तरह के process होते हैं, first is transmembrane, then apoplastic and then symplastic. Okay, तो इस तरह से water and whatever minerals are going to travel from this area, that is going to be absorbed at every step. Fine. Okay, now since it is present in soil, plants are present in soil, soil itself is a very good source of all these minerals. Okay, मतलब ideally plants को कुछ और minerals की ज़रूरत नहीं पड़ती है, irrespective of whichever condition they are growing. बहुत रेयरली ऐसे कंडीशंस आते हैं जब हमको एक्सटर्नली प्लांट को फर्टिलाइज करना पड़ता है या फिर न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं। Okay, fine. Ideally, soil itself is a very good source of all the nutrients which the plant requires. Fine. So that was mechanism. Now coming to very important, very important topic for you all, जिसमें आपको थियरी में भी पूछा जाएगा प्लस आपके इसके एग्जाम जो नीट है उसमें भी पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली क्या है। नाइट्रोजन साइकिल इज वी आर फिक्सिंग द नाइट्रोजन फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। सो फर्स्ट हमें याद रखना है कि हम N2 फिक्सेशन कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप of nitrogen fixation, that is N2 fixation. So what is basically N2 fixation? N2 fixation में क्या होता है कि हम जो नाइट्रोजन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। ओके, फाइन, दैट इज N2 fixation. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन। Nitrification. Okay, so what exactly happens in nitrification? I'll just correct it. नाइट्रिफिकेशन, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन नाइट्रिफिकेशन में, हमें N2 फिक्सेशन से अमोनिया मिला है। ओके,
तो अमोनिया को हम ऑक्सीडाइज करते हैं टू फॉर्म what? To form nitrite. Okay, ammonia is oxidized to form nitrite. ये प्रोसेस जो पूरा होता है that is done in presence of one bacteria. Okay, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर. नाइट्रोबैक्टर. Okay, fine. So ammonia, conversion of ammonia to nitrite is called as nitrification. Okay, next process होता है हमारा assimilation. Okay, assimilation में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये नाइट्राइट तो है, लेकिन देर इज सम नाइट्राइट विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो. मतलब एनिमल्स का जो काउडंग होता है या फिर एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, ओके, उसको अगर वो सॉइल पर आता है, आइडियली एनिमल्स डेफिकेट ऑन सॉइल ओनली, सॉइल सर्फेसेस, गार्डन सर्फेसेस जो होते हैं, तो उनका जो वेस्ट होता है दैट इवेंचुअली गोज इनसाइड द सॉइल. फाइन. या फिर जो सॉइल का बैक्टीरिया रहता है दैट फीड्स ऑन दैट वेस्ट ऑफ द एनिमल. सो उनका जो वेस्ट होता है दैट इज डिकम्पोज्ड, एंड वो जब डिकम्पोज होता है सो व्हाट वी गेट इज नाइट्राइट. तो उनके नाइट्रोजन कंपोनेंट, मतलब उनके वेस्ट से जो हमें नाइट्राइट मिलता है प्लस जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो फिक्स किया जा रहा है वो सबका एक साथ कंबाइन होना इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. ओके, लास्ट प्रोसेस आता है डीनाइट्रिफिकेशन. Denitrification. What is denitrification? Denitrification is हमने जो ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया है, ओके, जो ऑक्सीजन को हमने कन्वर्ट किया है उसको हम फिर से एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं. ओके, उसको फिक्स करके फिर से हम एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन. पहले हमने नाइट्रिफिकेशन किया, we made that nitrogen useful for us. Okay, but now we want to send it back to atmosphere. तो हम उसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं भेज सकते. अगर हम उसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भेजेंगे तो वो एक टॉक्सिक गैस बनता है. ओके, इट बिकम्स ए टॉक्सिक गैस. सो व्हाट वी डू इज, अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो फर्स्ट इज हमारे पास N2 होता है जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है. एंड रिमेंबर नाइट्रोजन इज एन inert gas. Okay, it is an inert gas. Fine. Inert matlab it is harmful gas. We can't consume it. Humans can't consume it. That's why we need plants, ताकि plants can fix the nitrogen in our environment. अगर plants नहीं होंगे तो हमारा nitrogen fix नहीं होगा. Remember that. Okay. So N2 हमने लिया. Okay, N2. So N2 को हमें fix करना है. So how it is going to be fixed? It is going to be fixed by conversion to ammonia. Okay, fine. तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये सॉइल में एब्जॉर्ब होता है. ओके, सॉइल या फिर वाटर सर्फेसिस में एब्जॉर्ब होता है एंड देन इट अंडरगोज नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो व्हेन इट अंडरगोज नाइट्रोजन फिक्सेशन N2 बन जाता है NO3. दैट इज आर ammonia. Okay, ammonia. Fine. So this is again needed by the plants for their photosynthesis process. फिलहाल हम वो नहीं देखेंगे, फिलहाल विल सी ओनली दी नाइट्रोजन साइकिल. तो हमारा नाइट्रोजन फिक्स हो गया है. इट इज कन्वर्टेड टू what? It is converted to ammonia. Fine. Now the ammonia जो यहाँ पे है, we will have lot of bacteria in and around here in the soil. So all those bacteria, which are the nitrobacteria, are going to act upon this ammonia and it is going to convert it to nitrites. Okay, it is going to convert it to nitrite. This is nitrite, NO3, nitrite. Okay, now
nitrite is going to again act in the soil. Okay, soil में act कैसे होता है? It is going to reach the plant. Okay, it is going to reach the roots, फिर वहाँ से भी absorb होता है, and then it plays an important role in photosynthesis वगैरह. So that is nitrification. Okay, plus अभी ये एनिमल है, इसका काउडंग जो होता है, that is also going to undergo ammonification. Okay, it will also have nitrogen, so it is also going to undergo ammonification. Okay, उनके वेस्ट से जो नाइट्रोजन मिलेगा that will also be converted to ammonia. तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? नाइट्राइट का बड़ा सा सबस्ट्रेट, नाइट्राइट का बड़ा सा ग्रुप. ओके, so that is how it is. कुछ पार्ट जो होता है that is going to be stored in the soil. नाइट्राइट का कुछ पार्ट जो होता है that is going to be stored in the soil ताकि plant can absorb it for photosynthesis. जो remaining part है that is sent back to the atmosphere. लेकिन हम NO2 डायरेक्टली नहीं भेज सकते, तो NO2 जो है इसको हमें N2 में कन्वर्ट करना पड़ता है. N2 इज दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है फ्रॉम NO2 टू N2 इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन. तो जब डीनाइट्रिफिकेशन होता है, जो नाइट्रोजन उसके बाद हमें मिलता है दैट इज डायरेक्टली सेंट इन दी एटमॉस्फेयर. सो इट्स ए साइकिल. पहले हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, N2 लेते हैं, वी कन्वर्ट इट टू NO3. ओके, फाइन. अमोनिया बनने के बाद वी स्टोर इट इन द सॉइल. फाइन. स्टोर करने के साथ साथ हम अमोनिया को कन्वर्ट भी करते हैं. वी कन्वर्ट इट टू NO2, दैट इज नाइट्राइट. फाइन. फिर एनिमल का जो नाइट्राइट कंपोनेंट आता है वो सब मिलके क्या बनाता है? नाइट्राइट का ग्रुप बनाते हैं. तो इसमें से कुछ पार्ट जो है दैट इज stored in the soil for the plant, and some part remaining part जो necessary नहीं है that is sent back to the atmosphere. So that is our nitrogen cycle. So nitrogen cycle has 4 steps: N2 fixation, nitrification, assimilation and denitrification. Okay, fine. So yeah, that's all for today's class. So in this chapter आपको ये tables याद रखने हैं. Okay, these 2 tables, and then you have to remember nitrogen cycle. We have another process also. Next lecture में हम उसका half part देखेंगे. But for today's point of view, आपको वो tables याद रखने हैं, and then you have to remember the nitrogen cycle. That's important. Yes. Any doubts? Any doubts for today's class? No doubts. Okay. You guys could do the assignment जो हमने सैटरडे को दी थी. उसमें कुछ डिफिकल्टी है आप लोगों को? ओके, फाइन. आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोगों को कुछ भी डिफिकल्टी आती है, if you people have problem in finding the answer, if you are not understanding the question, anything, please come up with your doubts. Okay, and हमने वो क्वेश्चन पेपर आपको इसलिए भेजा था ताकि you get to know how the questions are, you get used to the question pattern, and then you learn कि आपको आंसर भी कैसे फाइंड आउट करना है या फिर आपको आंसर भी कैसे करना है. So this is just a practice session. We'll slowly start with your test series. आप लोगों के एग्जाम का डिसीजन एक्चुअली आना, I think it's pending. Maybe by tomorrow we might get a confirmation about it. So still we have time. So don't worry, we'll complete.
and we'll prepare you all for the exam. Okay. Any doubts for today's class? No, ma'am. Okay. Fine. Then और मैं हाँ, yes, बोलिए बोलिए. वो न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर से आते हैं? Sorry, न्यूमेरिकल numericals. क्वेश्चन। हाँ, Numericals. न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना, वो कहाँ कौन से चैप्टर से आते हैं? न्यूमेरिकल्स आप बायो की बात कर रहे हैं? बायोलॉजी की बात कर रहे यस हैं? मैम, यस मैम। बायोलॉजी में बेसिकली अगर आपको आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन आते हैं, जो कन्वर्जन होते हैं, फॉर्मूलाज जो होते हैं, जैसे हमने अभी नाइट्रोजन साइकिल देखा, तो उसमें व्हाट वी हैव इज हाउ N2 इज कन्वर्टेड टू N3, देन हाउ इट इज कन्वर्टेड टू NH4. तो ये जो कन्वर्जन होता है, ये फॉर्मूलाज का कन्वर्जन आपको आता है. we'll start with that also slowly. धीरे धीरे आपका जैसे जैसे पोर्शन एक एंड पे आएगा तो we'll start with that also, don't worry. क्वेश्चन पैटर्न्स, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे आंसर करना है, ऑल दैट. ओके मैम। फाइन, देन should we wind up? हेलो। Yes. आ, कुछ भी डिफिकल्टी हो आपको या फिर कुछ क्वेरी हो तो आप बता सकते हो अभी, या फिर बाद में भी आप मैसेज कर सकते हो. तो आई होप कि आज के क्लास में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आई आपको. सो थैंक यू सो मच मैम. Yes, thank you. थैंक यू ऑल ऑफ यू. आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा केयर करिए अपनी और अपने फैमिली की भी, और हेल्थ भी बराबर रखिए, बराबर टाइम पे खाना खाते जाइए. सो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू ऑल ऑफ यू. Thank you. नेक्स्ट लेक्चर के डिटेल्स हम आपको जल्दी ही फॉरवर्ड करेंगे. सो हम ये क्लास अभी यहीं पर एंड कर रहे हैं. थैंक यू और जय भीम ऑल ऑफ यू. जय भीम मैम. जय भीम, जय भीम. Thank you everyone. Please take care of yourselves.